manage classroom, how to manage classroom by classroom. So we will learn here about the AI tools. This is totally a practical work today. We will not discuss about the theory. We will बताया जाएगा आपको कि AI tools exactly होते क्या है. So without delay, I'll start on this topic, AI tool for effective teaching in classroom. First of all, welcome everyone for this wonderful sessions on effective teaching in classroom. Welcome to the presentation of AI tools for effective teaching in the classroom. In this presentation, we will explore how to artificial intelligence can enhance the teaching and learning experience. What is the benefit of artificial intelligence? How we can use the artificial intelligence during the class times and teachers. We will discuss various AI tools that can be used educator to improve student engagement and personalize learning and overall classroom effectiveness. So this is a very important topics we will discuss today's sessions. AI tools for effective teaching in classroom. In these sessions, we will learn more and more thing about the artificial intelligence regarding teaching experience. Now, first of all, we will understand the artificial intelligence or AI in education exactly है क्या. First of all, we will learn about artificial intelligence. Actually, I think everyone know about the artificial intelligence. So, artificial intelligence क्या है? Artificial intelligence is the branch of the computer science जो involve करती है smart machines को perform tasks and typically require the human intelligence such as visual perceptions, speech recognition, decision making, language translations. AI is achieved through the use of algorithm and machine learning techniques that enable to computer to learn from data and improve their performance over the time. आज के दौर में today's scenario, exactly the artificial intelligence is the very important segment and very important element in today's world. Without the artificial intelligence, uh, nothing is possible, है ना. तो exactly अब ये क्या है कि AI tools in education exactly है क्या. हम एजुकेशन में एआई टूल्स का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं. एग्जैक्टली वी शुड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि व्हाट इज द एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन and what is the importance in the education systems. And the artificial intelligence has the potential of revolutionize education in many ways. One of the most significant benefits is personalized learning. AI can be used for automated administrative tasks, freely up teachers' time more and more meaningful interactions with the students. However, it is important to note that AI is not a replacement for the human teachers, but rather the tools to enhance their capabilities and improve the overall education experience. तो ये क्या है. तो एजुकेशन में हम एआई टूल्स का जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ ये ओनली ह्यूमन रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि क्या कर दिया है, इसने हमारे वर्क को, हमारे टास्क को और ज्यादा बेहतर बना दिया है ना, और ज्यादा बेहतर और फास्ट बना दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने.
लोग कहते हैं ना नौकरी चले जाएगी, नौकरी चली नहीं आएगी, लोगों को नौकरी मिलेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से। जो लोग डिजिटली स्ट्रांग होंगे उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से मिलेंगी। तो अब एआई रोल क्या है, यानी एजुकेशन में एक्चुअली द रोल ऑफ द एआई इन द एजुकेशन, हाउ टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क विद द एजुकेशन। So first off, we will learn about exactly artificial intelligence is the increasingly becoming significant of the educations. AI-powered tools and system can enhance the learning experience by the offering personalized educations, automating the administrative tasks, and providing the data-driving insights. Automating administrative tasks and providing data-driving insights. AI can also be used for creating virtual tutors and assistants. यानी कि आप कोई एक यू कैन आप कोई एक भी वर्ड उस AI टूल्स के जरिए कोई अगर आप एक वर्ड्स को आप इंसर्ट करते हैं तो यू कैन फाइंड आउट द लॉट ऑफ थिंग्स हियर, है ना, which can help student with their homework, explanations, and answer and questions. Additionally, AI can be used to develop educational games, simulations, making learning more engaging and interactive. Furthermore, AI can be analyze student performance and providing teachers with feedback on their teaching methods and material, allowing for the continuous improvement. तो रोल क्या है एजुकेशन का, एआई का रोल क्या है एजुकेशन में, कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, यू कैन वर्क क्विकली, और आपको बहुत ही ज्यादा यू कैन एनालाइज स्टूडेंट परफॉर्मेंस, है ना, एंड प्रोवाइड टीचर्स विद द फीडबैक ऑन देयर टीचिंग मेथड मटेरियल, बहुत ज्यादा प्रोवाइड हो जाएगा टीचिंग मटेरियल, अलाउइंग द कंटिन्यूस टू इम्प्रूवमेंट, और हमेशा आपके टीचिंग प्रोफेशन में एआई से एक इम्प्रूवमेंट क्रिएट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस 3 पॉइंट एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कैन एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ द डाटा, एडप्ट कंटेंट विद द इंडिविजुअल लर्निंग नीड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आपकी लर्निंग में, आपकी एजुकेशन में क्या होगा, एक एडवांसमेंट आएगा। यू कैन सर्च more and more things, you can learn more and more things about your educations, your teachings, है ना। empowering educator through the automations, क्या हो जाएगा, एक ऑटोमेशन आ जाएगा, है ना। तो you can automatically administrative tasks, you can automatically search your questions and answer, you can create or assignment, you can do everything whichever you have in your mind, ठीक है। तो empowering educators through the automation के जरिए क्या हो जाएगा, आप एक छोटे से काम को बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन आप पर जो टाइम होगा वो बहुत टाइम बच जाएगा आपको एआई के टूल्स के लिए। वो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती है। तो क्या है, एआई इनेबल पर्सनलाइज फीडबैक एंड प्रोग्रेस ट्रैकिंग। तो आप क्या कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स का, है ना, और उसको क्या कर सकते हैं, उसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, उसके डाटास को सेव कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो यू कैन यूज थ्रू द एआई टूल्स इन टीचिंग प्रोफेशन। द नेक्स्ट वन इज एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट्स। एआई टूल्स जो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होते हैं वो क्या है, स्मार्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म। एआई टूल्स प्रोवाइड, क्या करते हैं, प्रेजेंट लर्निंग मटेरियल इन वेरियस फॉर्मेट इंक्लूडिंग इंटरैक्टिव वीडियो है, सिमुलेशंस एंड गेमिफाइड कंटेंट। तो स्टूडेंट्स के लिए एआई टूल्स फॉर द स्टूडेंट्स क्या है, ये सारी चीजें यू कैन इजीली आपको मिल सकती है ना, ठीक है। लर्निंग मटेरियल इन वेरियस फॉर्मेट, you can find out there the learning material,
है ना, इंटरैक्टिव वीडियोस, सिमुलेशंस एंड गेमिफाइड कंटेंट। लैंग्वेज लर्निंग है, बहुत सारे लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जो एआई पर बेस्ड है। एआई पावर लैंग्वेज ऐप ओवर रियल टाइम प्रोनाउंसिएशन, फीडबैक, पर्सनलाइज्ड लेसन्स प्लान। तो बहुत सारे लैंग्वेज ऐप है जो आपको क्या करता है, फीडबैक प्रोनाउंसिएशंस को भी करेक्ट करता है, पर्सनलाइज्ड लेसन्स को भी क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता है। द अदर वन इज एजुकेशनल गेम, gamifications is the very very important in educations। तो क्या होता है ये gamifications with AI element enhance student engagement, encouraging crucial thinking। तो क्या करता है, एक एजुकेशन सिस्टम को एक सिंप्लीफाई करता है। whenever you use a game in your educations, you can create a more effective teaching, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग को मतलब हम एडॉप्ट कर सकते हैं किसके जरिए, गैम्बिफिकेशन के जरिए। तो ये गैम्बिफिकेशन क्या है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द टीचिंग। रिवीजन एंड स्टडी एप्स, बहुत सारे रिवीजन एंड स्टडी एप्स भी अवेलेबल हैं जो आपके स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। AI can generate customized study plan views and help student prepare to exam effectively। है ना, कितना भी मतलब कोई भी एग्जाम्स हो उसके लिए क्वेश्चंस को क्रिएट करना, क्विज़ेस के क्रिएट करना, अपना लेसन प्लान क्रिएट करना, और एग्जाम की प्रिपरेशन करने से लेकर एवरीथिंग इज अवेलेबल इन lots of, there are the lots of the study apps available, revision and study apps available, है ना। तो ये सारी चीज क्या आती है, टूल्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, किन ये सारे टूल्स को क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टीचिंग में इफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट वन इज कि AI इन एजुकेशन, बेनिफिट ऑफ द AI इन एजुकेशन का क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल AI in education, it is able to analyze a large amount of the data, provide the insight into the student performance। बहुत सारा डाटा होता है तो हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत सारा लिखने में इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या कर सकता है, AI टूल्स के जरिए we can easily collect the data, students data। AI powered chatbot can provide student with the immediately support and feedback। ठीक, तो ये चैटबॉट होते हैं, एआई पावर्ड चैटबॉट क्या करते हैं, वो इमीडिएटली जैसे कि कोई क्वेश्चंस है माइंड में किसी टीचर्स के माइंड, किसी भी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है, टीचर्स के माइंड में, यू कैन फाइंड आउट दियर, है ना, फ्रीली। अब टीचर फोकस ऑन द मोर कॉम्प्लेक्स टास्क, बहुत ज्यादा भी कॉम्प्लेक्स टास्क होगा उसको भी वो फ्रीली यानी इजीली सॉल्व कर सकता है। Overall, interactions of the AIs in education has the potential to improve the learning outcome and make education more accessible and efficient to the all students। The integration of the AI in education has the potential improvement learning outcome। तो इससे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लर्निंग हो जाती है, बहुत ज्यादा इंसान सीख रहा है AI की तरह। तो we will discuss in these are 4 benefit of AI। क्या है, पर्सनलाइज लर्निंग। तो लर्निंग क्या होती है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाता है, और वो किस चीज क्या हो जाता है, वो उसको जो लर्निंग होती है पर्सनलाइज हो जाता है। AI टेलर द कंटेंट ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड लर्निंग पेस, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। तो वो समझा देता है कि भी आपकी कमी कहाँ है, आप अच्छा कहाँ कर रहे हैं, आपकी कमजोरी क्या है, वो सारी चीज आपको समझा देता है। तो ये AI का बहुत ज्यादा बड़ा क्या है, ये बेनिफिट है। इफिशिएंसी, टाइम इफिशिएंसी, यू कैन सेव योर टाइम हियर, है ना। ऑटोमेटिकली टास्क लाइक द ग्रेडिंग एंड डाटा एनालाइज सेव टीचर्स टाइम, लर्निंग डू मोर, बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है टीचर्स का, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग कर लेते हैं, है ना, डाटा एनालाइज कर देते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देते हैं जब आप उसमें वो डालेंगे। इनहेंस स्टूडेंट एंगेजमेंट, क्या होता है, इंटरैक्टिव AI पावर टूल्स मेक लर्निंग मोर फन एंड
कैपिटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, क्या करता है, स्टूडेंट के इंगेज को इनहेंस करता है ना। तो ये एक बेनिफिट है। डाटा ड्राइविंग इनसाइड इट, आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को, एआई जनरेटेड डाटा हेल्प एजुकेटर आइडेंटिफाई एरिया इम्प्रूवमेंट एंड मेजर टीचिंग इफेक्टिवली। तो जो डाटा, जो इंसाइट्स होता है, तो वो क्या करता है, टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बनाता है, वो आइडेंटिफाई करता है इम्प्रूवमेंट को, और क्या करता है, टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, तो अब इससे फायदा हो गया। अब चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट डाटा प्राइवेसी को। जो चैलेंजेस हैं डाटा प्राइवेसी की, चैलेंज है बियास एंड फेयरनेस, केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड एआई एल्गोरिदम दैट परपेचुएट बाइस, बियास एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। बहुत सारी चीजें होती है जो फेयरनेस नहीं होती है, हमें लिखना कुछ है ना, हमें जानना कुछ है, लेकिन एआई टूल्स के जरिए बहुत सारी ऐसी, मतलब गलत इंफॉर्मेशन हमें एआई प्रोवाइड करा देता है। तो ये इसके क्या है, चैलेंजेस है, नुकसान नुकसान है। टीचिंग ट्रेनिंग एंड प्रॉपर ट्रेनिंग इज क्रूशियल टू हेल्प एजुकेटर इफेक्टिवली एआई इन द क्लासरूम। तो क्या होता है, जो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी बहुत चैलेंजेस होता है। डिजिटल डिवाइड इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टेक्नोलॉजी एंड एआई टूल्स फॉर ऑल स्टूडेंट कैन बी चैलेंजेस, है ना। क्या करता है वो, डिजिटली बहुत सारी प्राइवेसी होती है, बहुत सारी फेयरनेस नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इसमें क्रिएट करता है, डिजिटली डिवाइडेड कर देता है। तो ये क्या है, ये हमारे चैलेंजेस हैं एआई टूल्स का यूज करने के। तो हमने बेनिफिट भी समझ लिया, हमने चैलेंजेस भी के बारे में भी समझ लिया कि एआई टूल्स को यूज करने से टीचिंग को में क्या क्या चैलेंज है। द नेक्स्ट वन इज we discuss about the building the foundations of the success of students। क्या होगा, जब हम एआई टूल्स का यूज करेंगे तो क्या क्या होगा, ऑटोमेटेड योर टीचिंग, क्या कर लेंगे, अपनी टीचिंग को ऑटोमेटेड कर लेते हैं, ऑटोमेटेड हो जाता है, यानी कि यू कैन ऑटोमेटेड योर टीचिंग। बहुत सारा कोई मटेरियल है, आप कोई मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कुछ वर्ड्स की वर्ड्स है वो डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो आपका पूरा टेक्स्ट जनरेट हो जाए। सेकंड इज द ट्रेन योर स्टूडेंट फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी। तो एआई, इन द हेल्प ऑफ एआई आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी से के बारे में अवेयर कर सकते हैं कि ये न्यू टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन द मार्केट। मेकिंग स्ट्रेटजी विद द हेल्प ऑफ एआई, और एआई की मदद से आप बहुत सारी स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एडॉप्ट एआई टूल फॉर क्लासरूम में, और एआई टूल्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्लासरूम को अ, आप क्लासरूम को क्या कर सकते हैं, आप क्लासरूम को मैनेज कर सकते हैं। एडॉप्ट एआई टूल्स फॉर द क्लासरूम मैनेजमेंट, है ना। यूज एआई एंड सेव योर टाइम, क्या कर सकते हैं, आप इन एआई टूल्स के जरिए यू कैन सेव योर टाइम। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एआई के। अब नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट पॉइंट इज ए एआई टूल्स कौन कौन से, या एआई टूल्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हम आज चार जो एआई टूल्स है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चैट जीपीटी के बारे में मोस्टली सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, एजुडी, ये टीचर बोर्ड, चैट जीपीटी एंड टॉम एआई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट, ठीक है, एज एआई के बारे में। तो देखिए, एक 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 ये एआई असिस्टेंट कंटेंट एजुएट के बारे में, ये हमारा मतलब ये शुरू हो गया है। ठीक है, तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव सॉफ्टवेयर है, यानी एआई टूल्स है। ठीक है,
तो ट्राई फॉर फ्री, तो अभी ये क्या करेंगे हम लोग, ट्राई फॉर फ्री है ना, हम कौन सा वाले वर्जन पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे फ्री वर्जन पे, ठीक है, ट्राई फॉर फ्री, ठीक है। तो जब हम ट्राई फॉर फ्री करेंगे तो इस तरह का इसमें एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा सामने, है ना। ये इंटरफेस जब खुल के आ जाएगा तो सबसे पहले हम ये 3 लाइन है, इस पे क्लिक करेंगे, हम देखेंगे एग्जैक्टली होता क्या। तो इसमें क्या क्या है, असिस्टेंट, है ना, कंटेंट जनरेटर्स, एजुएट, चैट, फीडबैक बॉट, कम्युनिटी एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। ये 1 2 3 4 5 6 यानी 5 एलिमेंट्स को हमें ये प्रोवाइड कर रहा है एजुएट क्या कर रहा है, हमें 5 सेगमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इसमें एक सबसे खास बात ये है कि एक इसमें टेम्पलेट दे रखे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि मुझे लेसन सी होना चाहिए ना, जनरेट द लेसन प्लान आउटलाइन, हमें लेसन प्लान बनाना है विथ एन ऑब्जेक्टिव, पॉसिबल स्ट्रेटेजी एंड द रेंज ऑफ द ऑप्शन फॉर द असाइनमेंट एक्टिविटीज। तो आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है ना, टॉपिक वन कीबोर्ड कीवर्ड। अगर आप यहाँ पर सपोज दैट आपने फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो आपने कहा कि भी हमें प्लीज जनरेट द लेसन प्लान आउटलाइन विद एन ऑब्जेक्टिव पॉसिबल स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो ये क्या कर देगा, देखिए आप यहाँ पर ऐड टू वर्क पर जाएंगे, यू गो टू ऐड टू वर्क, यू कैन क्रिएट हियर, देखिए लेसन प्लान पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन है ग्रेड 12 टू दैट। तो यहाँ पर क्या किया है, एक ग्रेड के बारे में दिएगा कि किस ग्रेड का चाह रहे हैं, 1 11 12 9 10, है ना, 5th ग्रेड 5th ग्रेड, है ना, प्री स्कूल स्टूडेंट। तो यू कैन सेलेक्ट हियर एनी क्लास विच यू आर नीडेड। तो ये क्या, लेसन प्लान पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो यू कैन फाइंड आउट हियर ऑब्जेक्टिव्स, ये व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स हियर, वही करना जरा, खोलना, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इज हियर। हाँ, क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव इज हियर, है ना। तो नॉलेज ये डिफाइन द पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, यू कैन फाइंड आउट हियर एन ऑब्जेक्टिव हियर। at teaching strategy here you can find out how to teach lecture, provide the comprehensive overview of public policy administration in India, covering key concept historical। तो ये सारी चीजें है हो रही है ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर दिया है, ग्रुप डिस्कशंस क्या होने चाहिए, और रोल रोल प्लेइंग क्या होने चाहिए, असाइन स्टूडेंट डिफरेंट रोल आई द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, सिटीजन पॉलिटिशियंस एंड कंडक्ट ए simulations exercise to the understanding of complexity involved है ना। यूज सेट देगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिनेरियो क्या होना चाहिए, है ना, कंपैरिजन चार्ट कैसा होना चाहिए, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस कैसा होने, सारी चीजें, है ना। एक्टिविटीज, यू कैन फाइंड आउट द एक्टिविटीज यार, है ना। असाइनमेंट आइडियाज, असाइनमेंट आप कैसे किस मतलब टॉपिक क्या होना चाहिए असाइनमेंट का, रिसर्च पेपर, आस्क स्टूडेंट टू राइट अ रिसर्च पेपर ऑन द स्पेसिफिक पब्लिक पॉलिसी इश्यूज इन इंडिया, analyzes its historical background, current status and potential future development। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, वे टू इनकरेजिंग रियल वर्ल्ड स्किल ऑफ द स्टूडेंट, ये पूरा चीज है। क्लोजर क्वेश्चंस, यू कैन फाइंड आउट द क्वेश्चंस हियर, what is the questions in this, how can citizen participate in the policy making help to improve है, there is a 5 questions, है ना, 5 क्वेश्चन दे रखे। तो you you create you generate the lesson plan for any topic which is the standard of 12। After that we will go there, class announcement, है ना, develop a clear and concise statement to relay information to class to the and LMS for class announcement है ना।
तो आपने कहा कि ठीक है, मैं कोई क्या क्लास अनाउंस करूंगा, पब्लिक हॉलीडे ऑन 15 अगस्त 2003। क्या है 2003 का? चलिए, relations और ठीक है, तो आपने ये कर दिया, पब्लिक अनाउंसमेंट करना है। तो ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, आपको एक मतलब पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए एक आपको मैसेज क्रिएट करके दे देगा क्या। अटेंशन अपर क्लास स्टूडेंट इन ग्रेड 11 to 10, वी हैव some exciting news to share with you. On 15 August we will celebrating a public holiday which mark a celebration of the Independence Day in our country. This day holiday immense significance as it have freedom. तो ये पूरा है। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्टेड। तो यू कैन देखिए, क्लास अनाउंसमेंट, यू कैन अनाउंस द क्लास, है ना। आप कोई भी मतलब कर सकते हैं यार। फॉर एग्जांपल आपने, यही जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ यही किया। तो आप वो काइंडली सबमिट योर असाइनमेंट, काइंडली सबमिट योर असाइनमेंट टिल 20 अगस्त 2003 ऑन पब्लिक एडमिशन इंडिया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरह का भी मैसेज आप क्लास अनाउंसमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, क्या किया आपने, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आपने जो क्लास अनाउंसमेंट किया हो ये जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या है, अटेंशन से यू आर यू इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द फैसिलिटिंग द वर्ल्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, लुक इन फर्दर। तो ये क्या है, आपको वह सो शार्पन योर रिसर्च एंड एनालिटिक स्किल। तो आपको ये पूरा क्रिएट करके, आपको ये अनाउंसमेंट क्रिएट करके दे देगा, है ना। जस्ट ए मिनट एक्चुअली। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो वी आर डिस्कसिंग हियर कि हाउ टू, तो ये है ना। अब क्या है, सब्स्टिट्यूट प्लानर लीव एक्स एक्सप्लिसिट एंड क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द सब्स्टिट्यूट टीचर्स। तो क्या कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ कुछ नहीं किया है, तो वो अपने आप क्रिएट करके दे देगा, है ना। पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो जब हमने सब्स्टिट्यूट प्लानर पे कहा तो ये क्या कर देगा, तो ये हियर इज प्लान इज क्रिएटेड।
As part of the assignment, we invite you to submit your research paper. देखिए ये substitute teacher plan, classroom rule, respect, read. I think there is some problems. ये क्या कर दिया, देखिए बेस्ट प्रैक्टिस हैंडलिंग स्टूडेंट, ये पूरा प्लान क्रिएट करके दे दिया। स्कूल डे शेड्यूल, मॉर्निंग एक्टिविटी, मैथमेटिक्स, सब्स्टिट्यूट प्लानर ना, इंग्लिश लैंग्वेज, आर्ट, स्नैक्स, साइंस, लंच ब्रेक, सोशल स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन एंड आर्ट, रैप अप है, क्लीन अप, डिफिनेशन, असाइनमेंट, आइडियाज। तो ये क्या कर दिया सब्स्टिट्यूट प्लानर, ये पूरा आपको क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज द एविडेंस स्टेटमेंट। अब एविडेंस स्टेटमेंट्स में ये क्या करेगा, ये एक्चुअली आपको ये दे देगा कहाँ से ये क्रिएट हुआ। तो व्हेन वी विल जनरेट इट, रिमेंबर सब्स्टिट्यूट टीचर्स, अंडरस्टैंडिंग, एनालाइज। तो ये देखिए ना क्रिएटिंग, ये क्या कर रहे हैं, एविडेंसेस दे रहे हैं। डिजाइन कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी प्रपोजल टू टैकल, ये सारी चीज यहाँ से क्या, डिजाइन द कंप्रेसिव पब्लिक पॉलिसी। रिमेंबर दिस एग्जाम्पल कोड्स ओनली demonstrate the mastery of the topic of each level. Top students should be encouraged providing their unique. तो ये सारी क्या एवल्यूटिंग, एनालाइजिंग, ये कहाँ से दिया, तो पूरा कोड दिया इन्होंने। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आप इसको आप एविडेंस स्टेटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ डाला फ्रेंच रेगुलेशन, तो इसमें क्या कर देंगे, तो ये क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि ठीक है हमें एविडेंस बना के दीजिए, काइंडली क्रिएट द एविडेंस स्टेटमेंट्स। आप देखिए तो ये क्या कर देंगे, ये पूरा कॉम्प्रेसिव एप्लीकेशंस क्या है, ये सारे एविडेंस कर देंगे। डेवलप स्पेसिफाई एविडेंस टू प्रूव द मास्टरी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लेनिंग प्राइमरी सोर्सेस, स्पीचेस, टेम्पलेट, ये सारे एनालाइज क्या है, एवोल्यूशंस क्या है, सारा एवरीथिंग इज अवेलेबल इज हियर। ठीक है, और रिपोर्ट फॉर एग्जाम्पल पब्लिक पॉलिसी एडमिशन रिपोर्ट क्या है, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द रिपोर्ट और ऑडियंस ऑफ द रिपोर्ट यू कैन नीड एड्रेस। ठीक है, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा जो रिपोर्ट्स है ना वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना, whom this may concern, I hope this report find the, ठीक है, wealth spirit, public policy in India, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंजेस, रिफॉर्म, तो इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, कंक्लूजन। तो क्या हो जाएगा, पूरी रिपोर्ट एक क्लियर, किसी भी टॉपिक पर है ना क्या हो जाएगी, एक रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी। whom this may concern, I hope this report find the good health and high speed. I am writing and providing you with the throughout the overview of the public policy of administration landscape in India. This report aims to shade, है ना। तो आप क्या होगा, स्टूडेंट्स नेम ये तो ये क्या होगा, स्टूडेंट्स के बारे में यू कैन क्रिएट ए रिपोर्ट, है ना, कि स्टूडेंट्स ये है, इसका नाम ये है ना। यू कैन राइट यार, हमने तो अभी सिर्फ एक यहाँ पर एक पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का एक टॉपिक लिया है, लेकिन यहाँ पे यू कैन राइट हियर, है ना, यू कैन राइट हियर एनी नेम फॉर एग्जांपल रमेश, ठीक है, कुमार, 12 सेक्शन बी। ठीक है, अब इस पे पब्लिक पे आपने क्या करा, तो ये क्या कर देगा आपको रमेश के बारे में ना पूरी क्रिएट कर देगा कि रिपोर्ट क्या है ना। ठीक है, ये देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, ये वो, योर नेम एंड टाइटल, है ना, होम इसमें का सब्जेक्ट रिपोर्ट ऑफ द रमेश कुमार, सेक्शन बी 12 क्लास पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो ये सारे क्रिएट करके दे देगा आपको, है ना। नेक्स्ट वन इज द यूनिट प्लान। फॉर एग्जाम्पल कोई भी यूनिट आपके पास है, तो आप क्या क्या कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल
आपके पास यूनिट है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, इंडिया। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इस पे आपको एक क्या कर देगा, आपको ये एक यूनिट प्लान बना के दे देगा आपको। देखो, यू कैन क्रिएट द यूनिट प्लान फ्रॉम हियर। Introduction of the public administration in India, objective understand the concept and principle for public policy administration। टीम वर्क क्या है, ठीक है। लेसन 2, लेसन 2 एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। ये चेक द आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेसन 4, लेसन 5। तो ये यूनिट प्लान क्या कर देगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड क्या है, लेसन 7, 8, 9, 10। ठीक है, चेक क्वेश्चंस है ना। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेसन 9, ई गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव। तो आपको ये 10 लेसन का ये क्या कर दिया ना, यूनिट प्लान आपको क्रिएट करके दे दिया। यू कैन क्रिएट योर यूनिट प्लान थ्रू द दिस सॉफ्टवेयर आल्सो। The next one is the email home. For example, produce the tactful outline of the an email to the guide your writing। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ईमेल जो है ना क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपकी लाइन है। फॉर एग्जांपल हमने पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पे ना, तो एक हमने कहा कि राइट है ईमेल, तो अब ये क्या है, क्रिएट कर सकता है ईमेल। देखिए ये ईमेल आपको, यू कैन क्रिएट योर ईमेल है ना। और यू कैन राइट डाउन योर मैटर इज आल्सो। वो तो मैं सिर्फ आपको एज एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ठीक है, क्या है, डियर पेरेंट्स, नेम है पेरेंट्स का नाम। आई होप दिस मेल फाइंड यू गुड हेल्थ and high spirit as we are approach the beginning of the new academic year. I wanted to take this opportunity to introduce you an important subject that your child will be studying in the coming months. The subject public policy is a crucial year। ये पूरा उन्होंने क्या करता है कि जिस टॉपिक पे आपको एड्रेस करना है अपने स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट्स को मतलब मेल सेंड करना है, तो यू कैन इजीली क्रिएट द मेल through the this sections the email home। ठीक है ना। your name, school name, contact, thank you for continue है together let the foster love and learning be direct structure step, find the right things to say student when teaching any, है ना। कोई भी डायरेक्शन देना है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्लिक किया तो यू कैन पब्लिक पॉलिसी एंड मिशन इन इंडिया। ठीक है, तो आप डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट तो हो जाए। क्या इंस्ट्रक्शन और क्या है, उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया टीचर्स ने। टाइटल पब्लिक क्या है, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रोडक्शन, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून क्लास, टुडे वी विल बी डिवाइडिंग इनटू द into subject public policy and administration in India as responsible citizen to the future leader. It is crucial understanding what is the public policy। ठीक है, check in questions what is the public policy, है ना। पब्लिक मेकिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये सारी चीज। चेक इन क्वेश्चंस टू हु आर द एक्टर इन्वॉल्व, ये एक्टर्स इन्वॉल्व इन पब्लिक पॉलिसीज। तो कीवर्ड्स यार, पब्लिक पॉलिसी रिफर्स, ये सारी चीज है ना। व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, है ना। तो ये सारे कंक्लूजन अंडरस्टैंडिंग द पब्लिक पॉलिसी। तो यू कैन क्रिएट है ना मैसेज एंड डायरेक्ट स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट। सिलेबस स्टार्टर, प्लान ए आउटलाइन ऑफ द सिलेबस टू गाइड योर राइटिंग एंड डेवलप टू दिस फंडामेंटल क्लासरूम डॉक्यूमेंट। ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पे यू कैन क्रिएट द सिलेबस आल्सो। ठीक है, क्या क्या उसमें क्या क्या देखिए ना। सिलेबस पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स डिस्क्रिप्शंस। this course aim to provide the comprehensive understanding of the public policy administration। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी पब्लिक पॉलिसी पे आपको क्या कर दिया, एक सिलेबस क्रिएट करके दे दिया ना। यू कैन क्रिएट योर सिलेबस हियर। कोर्स आउटलाइन, ठीक है, इंट्रोडक्शन पब्लिक पॉलिसी, है ना, डेफिनेशन, स्कोप एंड की, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शंस, है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, है, एजेंडा, है ना, है, की इश्यू ऑफ द चैलेंजेस, है ना, क्लास रूल्स, रेस्पेक्ट फीड ऑफ द क्लासमेट,
ethical and transparent public policy. So you can create here na each and every strike is classroom management contract है ना, dear parents and student issue. तो ये क्या है, स्ट्राइक वन स्ट्राइक टू, तो क्या है इसमें उन्होंने पूरा ये सिलेबस का स्टार्टर कर दिया कि प्लान ए आउटलाइन ऑफ द सिलेबस टू गाइड योर राइटिंग एंड डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा प्रोडक्ट ये प्रोफेशनल ड्यूटीज, इसके अलावा अब क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है कि फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट हियर टेम्पलेट्स है ना, फॉर एग्जांपल अब वी कैन चेंज हियर द टॉपिक इज वी राइट हियर we write here about change in development in India. For example, we can create the template from this. So now we are, this is our another topic is here, change and development in India. So you can क्या करते हैं, you can create a template. You can create a template. ठीक है, तो ये देखिए ये टेम्पलेट क्या हो गया, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन हो गए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओवरव्यू एंशिएंट मिडिवल इंडिया एंड दी इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइज्ड है इंडिया डेवलपमेंट। ठीक है, चेंज इन इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड लिटरेसी राइज एंड हेल्थ केयर एंड पब्लिक इनिशिएटिव वुमेन्स। तो ये क्या है, टेम्पलेट क्रिएट्स हो गए ना, है ना। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि क्रिएटर रैंक लिस्ट, तो आप क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी नहीं, हमें चेंज 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 एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का हमें क्या चाहिए, एक लिस्ट, रैंक लिस्ट चाहिए, कि रैंक लिस्ट किया। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट ए, यू कैन क्रिएट क्या है, देखिए रैंक लिस्ट कैसे क्रिएट होगी, ये देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल रेगुलेशंस, सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, राइज ऑफ मिडिल क्लास, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव, स्टार्टअप कल्चर, ठीक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट, हेल्थ इंप्रूवमेंट, एजुकेशन रिफॉर्म है, ये क्या है, दिस चेंज एंड डेवलपमेंट हैव हैड द प्रोफाउंड द इम्पैक्ट ऑन इंडियाज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप, transforming the country into the global and player improve the lives of millions citizens। तो ये क्या कर दिया इन्होंने, एक हमें एक लिस्ट क्रिएट करके दे दी, ठीक है ना, नेशंस वाइज जीडीपी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वन इज द टेबल। तो टाइप इन द नंबर्स ऑफ द रोज एंड कॉलम बाई, ठीक है, क्या है, चेंज इन डेवलपमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पर अगर हमारा टेबल होगा तो हम कर देंगे, वरना देखते हैं इसको क्या कैसे क्रिएट कर सकता है, टेबल क्रिएट कर सकता है। टेबल तो क्रिएट तभी करेगा ना जब आप डाटा इसमें प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तब भी ये क्या कर रहा है, देखिए इन्होंने क्या कर दिया, अब ये टेबल क्रिएट कर दिया। श्योर हियर इज ए स्प्रेड शीट ऑफ द ट्रैकिंग। तो ईयर, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी, लाइफ ट्रांसपेरेंसी एंड एसके। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक टेबल को क्रिएट कर दिया, एरर जनरेटिंग कंटेंट बाय ट्राइंग अगेन लेटर। ओके, तो ये क्या क्या हो गया, यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक एक उसको क्रिएट कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप यहाँ पे डाटा क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर डाटा क्रिएट कर सकते हैं, चेंज डेवलपमेंट इन इंडिया, सपोज दैट आपने कहा कि क्रिएट ईयर जीडीपी 20%, ठीक है, क्या है, और इन्फ्लेशन 5, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉय रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, सपोज दैट 9, ठीक है, एंड अनदर लिटरेसी रेट क्या है,
लिटरेसी रेट 12, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है? ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया, तो आप यहाँ दे रहे हो। तो अभी हम जब ये डाटा क्रिएट करेंगे, ये वैसे ही डाटा हमने मतलब अनप्लान डाटा है जो हम मतलब इसको हमने कहीं से, ये कोई सोर्सेस नहीं है, बस हमने इसको अपने से ही मन से इसमें नंबर दे दिए कि वो एग्जाम्पल के लिए कि हम एग्जाम्पल कैसे दें। तो हम जब यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक टेबल, तो अब देखिए दूसरी टेबल कहाँ कैसे क्रिएट होती है, नहीं होती है। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी मेजर इन द टोटल वैल्यू ऑफ, ये पूरा एक्सप्लेनेशन से अनएम्प्लॉयड रहेगा, ये एक्सप्लेनेशन दे दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, टाटा टेबल में क्या कर दिया, इन्होंने एक है, ये देखिए एक ग्रेड दी, लेकिन टेबल क्रिएट नहीं दी, क्योंकि हमारे पास वो जो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक मेजर ऑफ द टोटल वैल्यू, तो वो हमारे पास आंकड़े वो सही नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं किया है। देखते हैं, ट्राई इट अगेन। तो ये अब क्या कर रहे हैं, टेबल को नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओके कोई। तो अब नेक्स्ट वन इज credible sources list. Generate the list of 5 widely accepted sources about the specific topic. फॉर एग्जाम्पल, हमने जब ये टॉपिक है, अब टॉपिक क्या है, कहाँ से लिया है, इसका क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है, सोर्सेस क्या है। तो जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो क्या करेंगे, तो ये बता देगा कि ये जो कहाँ पर ठीक है, देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, देयर इज, यहाँ पर दे रखा है पूरा, ठीक है, डेवलपमेंट इन इंडिया लिंक दे रखा है, चेंजिंग डायनेमिक ऑफ इंडियन सोसाइटी यहाँ से, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से, यू कैन राइट हियर, चैलेंजिंग ए पैटर्न यहाँ से। ठीक है, 5 इन्होंने क्या किया, क्रेडिबिलिटी देखिए यहाँ से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया, स्टडी ऑफ द रीजनल डायरीज, दिस रिसर्च पेपर इन्वेस्टिगेट्स द रीजनल डिसएबिलिटीज। तो ये क्या गया, इन्होंने कहा कि इतनी जो हमारे पास क्रेडिबिलिटी इस टॉपिक्स की है, ये है, तो आप यहाँ पर जाके यू कैन गॉट इंफॉर्मेशन है ना, रिगार्डिंग दिस टॉपिक फ्रॉम द दिस साइट्स, दिस इज सोर्सेस, है ना। आप सपोज ये क्या, एंकर चार्ट, तो हेल्प योर स्टूडेंट विद द सिंपल आइडिया एंड एक्सप्लेन एनी टॉपिक। ठीक है, एंकर चार्ट, you want to create the anchor chart here, you go, you click here and go add to the workspace। तो देखिए एंकर चार्ट, चेंज द डेवलपमेंट क्या है ना, टाइटल, फ्रॉम टर्बन टू द टेक, इंडियाज इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन, इंडियाज एवोल्यूशन, स्पाइस, सिल्क एंड सिलिकॉन, एंड बॉलीवुड टू द प्रोग्रेस, इंडियाज जर्नी मॉडर्निटी। तो क्या हो गया, ये एंकर चार्ट क्रिएट कर दिया ना। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो क्रिएटेड rubric of any assignment, be specific about the assignment types and objective of the closest assignment। तो क्या कर सकते हैं, देखिए आप, अब यहाँ पर क्या है, हम लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, रूब्रिक ग्रेडिंग, चेंज डेवलप, ठीक है, क्राइटेरिया, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग 40 पॉइंट्स, ठीक है ना, है, ठीक है, 3 पॉइंट डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है, 1 पॉइंट डिस्प्ले, क्राइटेरिया थिंकिंग एनालाइज 30 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट कंसेप्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है किस किस का कितना पॉइंट्स आपको। ठीक है, यू कैन नोट दिस टोटल पॉइंट ऑफ द रूब्रिक और 100 क्या है, 100 पॉइंट्स के असाइनमेंट्स को दिया है, इसमें आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये है वेलनेस का। ठीक है, 10 मिनट सोशल इमोशनल लर्निंग एक्टिविटी टाइप, व्हाट आर यू, वुड यू लाइक टू स्टडी एंड लर्न इन टॉपिक, एग्जांपल
काइंडनेस एंड बुलिंग और कम्युनिटीज, ठीक है ना। तो आप ये भी कर सकते हैं 10 सोशल एसिलेटेड एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। ये बहुत सारे एक्चुअली यहाँ पर इसमें दे दिए, देखिए एक्टिविटी टाइमलाइन मटेरियल नीड्स चार्ट पेपर मार्क एक्टिविटीज ना, ठीक है। चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एक्सप्लोर डिस्कशन, और आप यू कैन क्लोज अ डिस्कशन हियर, ठीक है। तो आप ये क्या है, गिव द ग्रुप 5 2 मिनट्स, ये पूरा 10 मिनट्स की एक्टिविटीज, यू कैन डू एक्टिविटी इन दिस टॉपिक, है ना। अभी कहते हैं टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, क्या कर सकते हैं आप अपनी टीम की भी एक्टिविटीज को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। इंडिया जर्नी चेंज एंड डेवलपमेंट है ना, इंट्रोडक्शंस डिवाइडेड स्टूडेंट 2 3 पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ना। प्रोवाइड द सेट 10 फ्लैशलाइट कंटेनिंग, you can there is a instructions na, you can explain the each team will be 5 minutes to arrange the flashcard in the chronicle orders, you know, ये सारा you can ठीक है। ये advise create a guide and actions step to deal with the inevitable challenges in the life, है कोई भी लाइफ है चेंजेस, तो आपको क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हमने इसी के बारे में क्रिएट किया, तो ये क्या कर देगा हमें इसके बारे में क्रिएट करके देगा। देखिए ठीक है, तो एडवाइस ये देना, ये इफेक्टिवली हैंडल द टॉपिक ऑफ द चेंज द डेवलपमेंट इन इम्पोर्टेंट टू हैव द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट द गेनिंग सॉलिड अंडरस्टैंड, तो ये पूरा क्रिएट करके है एडवोकेट ऑफ द पॉलिसी प्रमोट द अवेयरनेस परस्यू ए कैरियर इन डेवलपमेंट, है ना, रिमेंबर। तो यू कैन एडवाइज ना, यू कैन एडवाइज योर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एनी टॉपिक थ्रू द दिस नंबर माइंडफुल एक्टिविटीज, सिट ब्रीथ सेंटर योर सेल्फ सेंटर योर आई क्लास, ठीक है। तो माइंड क्या है, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज क्या है, ये देखिए टाइटल embracing change in India, a mindful journey, duration 5 minutes, script of the leader begin by the creating a calm and comfortable environment, ensure the participants are seated with their back straight and feet ground on the floor. Leader, welcome everyone to this mindful activity focusing on embracing change and development in India. Today we will explore some breathing techniques that कैन हेल्प बाय द कल्टिवेट द सीन ना, ब्रीफ पोस्ट है ना लीडर। तो क्या हुआ, माइंडफुल एक्टिविटीज है, तो एक्टिविटीज भी आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज यू कैन क्रिएट दे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज ना, यहाँ पर क्या करना है कैसे करना है पूरा स्क्रिप्ट इज हियर, है ना, यू कैन रीड ये स्क्रिप्ट इज हियर, है ना, ठीक है। डेवलप ए इंगेजिंग एक्टिविटी टू गो नो योर स्टूडेंट आइस ब्रेक, ठीक है, क्या है टॉपिक इट में भी मतलब डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंडिया इन ट्रांजिशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन, वेलकम द स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्टिंग आवर जर्नी एक्सप्लोरिंग fascinating the world of the change develop in India. What before we dive into our lessons, let's get to know each other in the little better with the fun icebreaker activities called India is transitions. Instruction क्या, divide the class into the smaller group, provide the each group with the set of the index card, explain, ठीक है, icebreaker activities। तो ये सारी चीजें ग्रुप है 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3, है ना। कंक्लूड द एक्टिविटीज, ठीक है, टाइम बेनिफिट्स की एक्टिविटी अलाउ टू स्टूडेंट एक्टिविटी पार्टिसिपेंट एंड एंगेजिंग विद द टॉपिक्स। रिमेंबर learning can be enjoyable too. Let's embark the education journey together and explore the rich diversity change and development in India, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंक्लूजन, ठीक है।
outline an individual education plan. The more specific you put into the topic, that more helpful the outline will be. ठीक है, तो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान की आउटलाइन का क्या है दे दिए. फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक ही टॉपिक पे मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना. यू कैन चेंज योर टॉपिक वेन एवर यू प्रैक्टिकल इट. और अगर आप प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो यू कैन लर्न इट. अदरवाइज आप आज देखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या होगा, इसको भूल जाएंगे. देखिए, रिमेंबर लर्निंग कैन बी है ना इंजॉयफुल टू लेटर. स्मार्ट इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान को चेंज. ठीक है, डेवलपमेंट इन इंडिया. स्टूडेंट नेम, ग्रेड, डेट. गोल टू अंडरस्टैंड द फैक्टर ड्राइविंग चेंज द डेवलपमेंट इन इंडिया. स्पेसिफाइड, मेजरेबल, अटेंडेबल. ठीक है ना, रिलेवेंट, टाइम बाउंड. गोल टू एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडियाज इकोनॉमी एंड सोसाइटी. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, है ना. गोल ऑफ द, तो क्या किया, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान के ना पूरा उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया ना, गोल क्या है. ठीक है, देयर इज अ फाइल, गोल इज हियर, है ना. अब नोट में क्या लगेगा, प्लीज फिल द ब्लैंक स्पेस विद द स्पेसिफिक and measurable objectives that are appropriate for the students' learning level and ability. These objectives should be tailored to the students' need, interest, and education context. Ability क्या है, relevant क्या है, attend क्या है, measurable क्या है, specific क्या है. So you can individual education plan ना outline here. Accommodation list, come up with the list of accommodations for a specific disability or need to the student. ठीक है, so you can go there and add to work. There is a creative accommodations list. ठीक है, क्या है, possible accommodations to the improve students to achievement in the classroom setting. Upper class student in grade 12 to 10 in the context of the change development in India. Flexible learning space, create the different learning zones within the classroom. Technology integrations, differentiations, instruction, project based learning, individual learning plans, multicultural and inclusive curricular, regular assessment and feedback, professionals development for teachers, parents and community engagement, है ना, emotionals and mental health support, है ना. These accommodations aim to create an inclusive and engaging classroom environment that supports student diverse need and foster their academic achievement by implement of these strategies student में करें. ठीक है, तो behavior intervention evidences and lecture increase and decrease all in one in this these AI tools. You can do each and everything this AI tools. So I think this AI tools is completed. Actually, the time is though I am pasting here the link of this. This is, you can go and check this. So the next one we will discuss about the Chat GPT. It is a very important slide is movable or not.
नाउ वी विल लर्न टीचर बोर्ड एंड थोड़ा सा ही हम इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं, तो हम बहुत शॉर्ट में वी कैन लर्न अबाउट द टीचर बोर्ड इज आल्सो इम्पोर्टेंट एआई टूल्स फॉर द टीचर्स, है ना। यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ पर भी जिस तरह से हमने उस एआई टूल्स में बहुत सारी चीजें सीखी, उसी तरह से यहाँ पर क्रिएट एनीथिंग एफर्टलेस जनरेट योर टीचिंग सोर्स इन सेकंड। ठीक है, स्टार्ट हियर, यू वांट टू क्रिएट एनीथिंग, आप कुछ भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टास्क, लर्निंग इंटेंशंस, लेसन प्लास, स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ना मिडिवल इंडिया के बारे में, है ना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मिडिवल इंडिया के बारे में क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिडिवल इंडिया, है ना, तो हमें क्या क्रिएट करना है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिया है, लर्निंग इंटेंशन, टास्क है, लेसन प्लान है स्टूडेंट। सपोज दैट हमने क्या लेसन प्लान को क्रिएट किया, ठीक है, तो क्या है लेसन प्लान। तो ये क्या कर देगा, ये पूरे लेसन प्लान को क्रिएट कर देगा बहुत इजीली वे में और बहुत ज्यादा इफेक्टिवली। एक्चुअली आज का जो क्लास है बेसिकली एक प्रैक्टिकल क्लास था, और टाइम 1 आवर्स बहुत कम टाइम था। लेकिन देखिए पूरा ना मिडिवल इंडिया का लेसन प्लान था। मिडिवल इंडिया रिफर टू द पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, डिफरेंस ये पूरा पूरी हिस्ट्री ये ना, ये पूरा आपको ओवरऑल दे दिया है ना। आप इसमें डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, सिंप्लीफाइज, कॉम्प्लेक्सिटी या डाउन पीडीएफ, है ना। तो दिस विल बी टेक सम टाइम्स, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो यू कैन चेक इट और यू कैन प्रैक्टिकल इट। और अगर आप जब प्रैक्टिकल करेंगे ना इस पे, तो यू कैन लर्न मोर थिंग्स अबाउट दिस, है ना। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको, क्योंकि ये जो मैंने टूल जो बताया है ना, वो टूल सब पर मतलब भारी है। यू कैन सी वी आर ऑलरेडी सिंपल वर्जन, मिडिवल इंडिया वाज द पीरियड ऑफ, है ना, सिंपल वर्जन। तो आपने क्या कर दिया, मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन है, क्या है सिंपल वर्जन आपको दे दिया टीचर्स प्लानिंग में, कि क्या आपको सिंपल वर्जन क्या है, कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या है ना। मिडिवल इंडिया स्पेनिंग फ्रॉम द 6th सेंचुरी प्रोफाउंड, है ना। सिंपल वर्जन में मिडिवल इंडिया स्पेनिंग, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप, है ना, ये सिंपल वर्जन को वहाँ पर आप प्रेजेंट करना चाह रहे हैं या कॉम्प्लेक्स वर्जन को प्रेजेंट। कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या है कि बहुत सारी चीजें उसमें अलग दे दी है ना, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है ना। और सिंपल वर्जन में बहुत शॉर्ट दे दिया, देखिए ना, यू कैन सी है सिंपल वर्जन ना। ठीक है, मिडिवल इंडिया वाज द सिग्निफिकेंट सेक्शन, तो अभी ये भी सिंपल वर्जन दिया, एक मोर कॉम्प्लेक्स वर्जन। तो यू कैन सी हियर, है ना, एक्सप्लेनेशंस, है ना, बहुत ज्यादा उसको मिडिवल इंडिया को कर दिया। लेकिन जब आप इसमें पूरा डिटेल डालेंगे ना, तो आप यू कैन फाइंड आउट द अकॉर्डिंग टू योर डिटेल इज ना। तो दैट वन इज एक्सपोर्ट ईयर है। ठीक है, मिडिवल इंडिया के बारे में हम हमने जिस जिस सर्च किया है, तो यू कैन गो टू ये रीडिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग, इनहेंस, क्या है ना, आपने जो भी ना इंटरफ्रेंस स्टेटमेंट, कॉम्प्रेसिंग, जो भी आप मतलब पढ़ना चाह रहे हैं, जो भी आप यहाँ पर व्हाट यू नीड इंटरफ्रेंसेस, है ना, कॉम्प्रेसिव क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पर करेंगे विच बुक यू आर टीचिंग, आप कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी चीज, कौन से टीचिंग्स को आप है पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर यू कैन राइट हियर विच चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, मेक इट सेटेबल टू पीपल सेंस। ठीक है, आप किस किस 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी किस स्टैंडर्ड की को आप क्या करना चाहते हैं,
पढ़ाना चाहते हैं। तो लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यू विच बुक यू आर रीडिंग है, तो यू कैन यहाँ पर जो भी बुक होगी आप उस बुक के बारे में राइट डाउन ईयर, ठीक है, और चैप्टर कौन सा है, और ये आप कर दिए तो कंटिन्यू कर दिए तो वो पूरी डिटेल क्रिएट होके आ जाएगी। राइटिंग एग्जाम्पल स्टार्ट क्लियरिंग स्पेलिंग राइटिंग, ठीक है, वो भी इसमें भी यही करना है आपको, ठीक है। टीचिंग का क्या है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शन लेटर लिख करना है आपको। व्हाट इज द पीस ऑफ द राइटिंग अबाउट, है ना, हाउ मेनी पैराग्राफ एज, है ना, विच इज द पीस ऑफ द राइटिंग अबाउट, है ना, कोई सा भी पीस राइटिंग का क्या है, क्या लिखना है, लेटर लिखना है किस किस उसी बारे में, हाउ मेनी पैराग्राफ, फॉर एग्जाम्पल राइट ए लेटर टू पेरेंट्स, ठीक है, पैराग्राफ कितना लिखना है, 4 पैराग्राफ, एज क्या है पीपल्स की, 4 क्या है 16, तो यू कैन, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। दिस इज शेपिंग अप, है ना, नाइसली दिस इज शेपिंग अप, ऑलमोस्ट डन, जस्ट फ्यू मोर वीक। तो within a second you can create the letter, you can create your the text, you can create the questions, you can create your cues, you can create each and everything, ठीक है, जैसे कि नेम एड्रेस ये पेरेंट्स है ना, जैसे पूरा एड्रेस, आई होप दिस लेटर फाइंड टू यू गुड एंड, तो यू कैन राइट हियर द लेटर, है ना, वहाँ पर भी ईमेल रख सकते थे, यहाँ पर भी लेटर लिख सकते थे। तो ये सारी चीजें हैं यार इस बारे में, ठीक है ना, ठीक है। फॉरवर्ड प्लानिंग, प्लान एनी लेसन टू एक्टिविटी विच इज द नेशनल करिकुलम, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में है स्कॉटिश में है, तो हम करते हैं इंग्लिश में, ठीक है, 1+2, वी आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक, गेट दिस रेडी फॉर द ईमेल, ठीक है। तो ये क्या है, अभी इसमें ये वाला जो फीचर है ना, ये आया नहीं है, फॉरवर्डिंग प्लानिंग, ठीक है, तो ये आया नहीं है, तो ये क्या है, टीचर बोर्ड है, तो टीचर बोर्ड के बाद का भी लिंक मैं शेयर कर सकता हूँ, तो आप इस पर प्रैक्टिकल कर दीजिए, और इसके बाद फिर मैं आपको कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है ना, अदरवाइज एक्चुअली टाइम नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ना फास्ट थोड़ा कर दिया। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट वन इज चैट जीपीटी। है चैट जीपीटी के बारे में तो सब लोग मोस्टली जानते ही है ना। हाउ मेनी पीपल्स आर नोइंग अबाउट द चैट जीपीटी, कितने लोग हैं जो चैट जीपीटी के बारे में मतलब जानते हैं और प्रैक्टिकली यूज करते हैं। काइंडली राइट टू इन चैट बॉक्स हाउ मेनी पीपल्स आर नो अबाउट द चैट जीपीटी एंड यूज इट, कितने लोग हैं जो चैट जीपीटी के बारे में आप जानते हैं और यहाँ यूज करते हैं। यस, कोई नहीं जानता। राइट टू इन चैट बॉक्स यस और नो, हाउ मेनी पीपल्स नो अबाउट द, आई नो बट नेवर यूज, ओके, एंड how many people are know about chat gpt and they are using chat gpt. Chat gpt is also very important tools, actually this is the father of ai tools. I analyze, use, I know but never use, only one person use in there is 21 participants, only one person use in chat gpt, only one person I know and have used, little idea, okay sir. तो डोंट वरी, हम आपको बताएंगे चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी इज द फादर ऑफ ऑल एआई टूल्स। तो यहाँ पर चैट जीपीटी के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम इसके प्रॉम्प्ट को क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारी लिमिटेशंस भी है ना। ये आपको कभी भी कुछ भी गलत बता सकता है,
ठीक है। 2021 तक की जो नॉलेज अवेलेबल है वो चैट जीपीटी के पास है। 2021 के बाद की चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल चाहें कि हमें आज की न्यूज़ अवेलेबल हो जाए तो वो आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। आज का डाटा अगर आप कहें तो वो आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा। ठीक है। मे ओकेजनली प्रोड्यूस द हार्म, जो हार्मफुल बियास एंड कंटेंट, यानी हार्मफुल कंटेंट भी इस पे अवेलेबल है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल कि आप अब मैं आपको कोई मतलब एक आ, हमने पॉलिटिक्स के बारे में, हमने सोशियोलॉजी के बारे में देखा है ना। तो हम अब हमने हिस्ट्री के बारे में भी जाना। तो हम क्या करते हैं, हम साइंस के बारे में जानते हैं ना। वी नो समथिंग अबाउट द साइंस। तो जो लोग साइंस से हैं तो काइंडली राइट डाउन हियर द टॉपिक व्हाट आई एम इंटरेस्टेड नाउ। ओके सर, ओके सर, वी आर डिस्कस इट। तो राइट डाउन हियर, जो लोग साइंस के हैं वो लोग अपना एक टॉपिक राइट इन चैट बॉक्स। एक्चुअली आई एम नॉट द साइंस बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम द आर्ट्स बैकग्राउंड, तो आई कैन यूज द सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड अदर। तो जो लोग साइंस के हैं काइंडली राइट डाउन हियर। टाइम बहुत हो रहा है, प्लीज जल्दी से कर दिए क्योंकि हम लोग जल्दी, बहुत जल्दी खत्म करते हैं। यस, साइंस का कोई नहीं है इसमें। There is no any science student here. Recent development in cancer research. Okay, ma'am. Yes, I am. Kindly write down, sir. Sir, Nasir sir, kindly write down. So, recent development in cancer research. So, for example, we can use this topic, the recent developments in the cancer research. है ना? So, for example, Chat GPT is here. ठीक है ना? For example, you want to create a lesson plan. Create lesson plan. ठीक है, लेसन प्लान। रिसेंट डेवलपमेंट इन कैंसर रिसर्च। तो यू कैन क्रिएट द लेसन प्लान हियर वेन एवर यू वांट ना। तो आपको ये सारी चीजें पूरा लेसन प्लान देखिए, हम ये चैट जीपीटी के थ्रू यू कैन क्रिएट योर लेसन प्लान हियर। और यू कैन क्रिएट फॉर एग्जांपल यू वांट टू आस्क द चैट जीपीटी हाउ कैन आई टीच ठीक है। तो अब कैसे आपको पढ़ाना है, क्या करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं हाउ कैन आई टीच द टॉपिक है ना। हाउ आई कैन आई टीच टॉपिक है दिस टॉपिक। तो आपको ये पूरा बता देगा कि आप कैसे कैसे इसको प्लान करें, कैसे आपको क्रिएट करना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है ना। क्लास डिस्कशन 15 मिनट इनिशिएटिव द क्लास डिस्कशन है, आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे फैसिलिटी इन द कन्वर्सेशन अबाउट द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ चैलेंजिंग एस्ट्रोलॉजी। कंक्लूजन 5 मिनट। ये सारी तरह आपको देखना, एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ये कैंसर, प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज है ना, होमवर्क असाइनमेंट, assign the homework such as writing the short assessment। ठीक है ना। तो ये चाहिए वो, सॉरी। तो ये देखिए देखिए टीचिंग द टॉपिक लाइक द रिसेंट डेवलपमेंट कैंसर, ये ना आपको कैसे पढ़ाना है। इंट्रोडक्शन से प्री असेसमेंट,
engaging multimedia presentations, break down the complex concept, interactive activities, है ना, guest speaker, virtual talk, role play, debates, and on learning. तो आप क्या कर सकते हैं, you can कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप फॉर एग्जाम्पल राइट 10 क्वेश्चंस, अब ये क्या कर देगा, आपको 10 क्वेश्चंस आपको इससे क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। देखिए व्हाट इज द इमोथेरेपी, इससे रिलेटेड जितने भी हो गए ना, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको क्या कर देगा, है ना, आपको 10 क्वेश्चंस आपको क्रिएट करके दे देगा, ठीक है ना। यू कैन क्रिएट द 10 क्वेश्चंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट असाइनमेंट ऑन, क्रिएट असाइनमेंट ठीक है, असाइनमेंट क्या है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये आपको क्या कर देगा, असाइनमेंट की टॉपिक्स को भी क्रिएट करके दे देगा। तो यू कैन वेन एवर यू वांट टू राइट हियर, आप कुछ भी चाहते हैं कुछ भी मिल सकता है आपको, यू कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग विच इन योर माइंड। फॉर एग्जाम्पल सम रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑन किस पे, रिसेंट डेवलपमेंट इन द कैंसर रिसर्च, ठीक है। अब इसने क्या कह दिया, अब देखिए इन्होंने जो कहा है ना, वो मैं बताऊंगा उसको पूरा होने दीजिए। तो ये सारी क्या है, ये कुछ रिपोर्ट्स है, लिपिड बाइसेप्सिस, ये सारी चीजें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, पर्सनलाइज, है ना, एडवांस अर्ली। तो यू कैन राइट हियर, देखिए देखिए इन्होंने क्या कहा, देखिए एक चीज जो मैंने आपको बताया था ना, डेवलपमेंट कैंसर रिसर्च बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अप टू द लास्ट सितंबर 2021। तो इसमें क्या कर सकता है, इसमें सिर्फ 2000 यानी 2021 तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको एक टूल्स और बता रहा हूँ, ठीक है, वो ये तो है नहीं, लेकिन मैं यू कैन बहुत लोगों ने इसके बारे में भी सुना होगा, गूगल को तो सभी जानते हैं, लेकिन गूगल वर्ड, देखिए एक ये क्या है, ये एक गूगल वर्ड है, ये भी चैट जीपीटी की तरह है, लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, ये अभी डेवलप हो रहा है। लेकिन ये लेकिन जो चैट जीपीटी है उसके पास 2021 तक की रिपोर्ट्स यानी डाटा अवेलेबल है, लेकिन गूगल के पास रिसेंटली डाटा अवेलेबल है। देखो फॉर एग्जांपल हम गूगल वर्ड में डाल के देखते हैं क्या कहता है, सम रिपोर्ट्स ऑन, है ना। तो हम ये क्या कह रहा है गूगल, इसमें गूगल क्या कह रहा है, गूगल क्या कह रहा है, देखिए तो गूगल आपको क्या कर देगा, गूगल भी आपको देखिए ना, देयर आर सम रिसेंट डेवलपमेंट इन कैंसर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने नहीं कहा है कि भी आपके पास, हमारे पास 2021 तक की रिपोर्ट है इसके अलावा, ठीक है। हीमोथेरेपी, ठीक है, टारगेटेड थेरेपी, कैंसर वैक्सीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ना स्टूल, है ना। आपको अच्छा एक चीज ये है कि इसमें जो तीन 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 चीजों को क्रिएट करके देता है है ना, ठीक है। एक आप रीजनरेट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसको आप क्या कर सकते हैं, रीजनरेट, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यू कैन रीजनरेट हियर ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैंने डिफरेंशिएटेड बार्ड के बारे में इसलिए बताया क्योंकि वी कैन यूज समवेयर इन बार्ड, वी कैन यूज समवेयर इन चैट जीपीटी, है ना। तो ये हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो टाइम लग रहा है थोड़ी। तो अब हम आते हैं चैट जीपीटी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये सारी चीजें हमें अवेलेबल हो गई, मोस्टली वैसे ही आ रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि काइंडली
जस्ट मिनट, हम ये चाहते हैं कि क्रिएट ये चार्ट ऑन, ठीक है। तो हम क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट इन कैंसर रिसर्च पर यू वांट टू क्रिएट a chart, you can create here chart title recent development in cancer development area, ठीक है। तो you can create here chart also, है ना। बहुत सारी चीज जो आपके माइंड में है टीचिंग के टाइम, यू कैन सर्च हियर, है, यू कैन यूज, है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइट ए ईमेल टू students write a email to 5 students parents, इसलिए राइट ए ईमेल टू द 5 student parents, those are not present in school last 6 days। तो आप क्या है, ये आपको क्रिएट करके दे देगा ईमेल, यू कैन क्रिएट योर ईमेल। आप ये देखिए, ठीक है, आपको क्रिएट कर देगा। अब राइट ए व्हाट्सएप मैसेज टू डीन फॉर 2 days, ठीक है। तो क्या है, 2 day लीव के आपको क्या है, व्हाट्सएप मैसेज करना है अपने प्रिंसिपल को 2 days। दे कैन राइट हियर, यू कैन राइट हियर योर नेम, डीन्स नेम, आई होप दिस मैसेज फाइंड योर वैल्यू, ठीक है। तो क्या कर देगा, बहुत शॉर्ट में आपको एक व्हाट्सएप मैसेज दे देगा। और अगर आप राइट ए ईमेल, अगर आपने कहा कि ईमेल लिख दो, राइट ए लेटर, लेटर यू कैन राइट हियर, ठीक है। लेटर है, कोई आपको लिख सकता है, सब्जेक्ट ये पूरा, स्टार्ट डेट, ये लीव, तो ये फॉर्मेट लिख सकता है। इसके अलावा जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आप चाहते हैं आपके क्लास में, जो आपको स्टडी करना है, किसी भी ना, फॉर एग्जाम्पल वो मैंने क्रिएट करके बता दिया। और हाउ मेनी पीपल्स आर सजेस्ट मी द टॉपिक, यस आई एम, और another topic is which is suggested me, but I am interested now, classes open। तो आई थिंक दिस इज द चैट जीपीटी, बहुत ही ज्यादा पावरफुल। और जो भी आप चाहेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये कहा, आपने एक चार्ट लिया, आपने कहा काइंडली क्रिएट ए टेबल, किससे क्रिएट ए टेबल, किसका, ठीक है ना, रिसेंट डेवलपमेंट इन कैंसर रिसर्च। तो ये क्या कर देगा, आपको टेबल भी क्रिएट करके दे देगा। यू वांट टू क्रिएट ए टेबल, यू कैन, ठीक है। तो क्रिएट ए टेबल, तो आपने क्रिएट टेबल में क्या कर दिया, उन्होंने वही जो क्रिएट है चार्ट में दिया था, क्योंकि इसमें हमारे पास डेटा इज नॉट अवेलेबल, सो इसने क्रिएट नहीं की टेबल को, ठीक है ना। तो क्रिएट नहीं की, किस नहीं की, क्योंकि इसमें हमारे पास डाटा इज नॉट अवेलेबल। जब हमारे पास कोई डाटा होगा ना, है ना, तो ये हम जैसे फॉर एग्जाम्पल नहीं, हमने यहाँ पर ना नंबर ऑफ द कैंसर केसेस इन कंट्री, तो हमने अगर यहाँ पर इसको कॉपी किया, तो ये क्रिएट कर देगा, क्या कर देगा, ये कैन फॉर एग्जाम्पल
नंबर ऑफ कैंसर्स के लाख, टीबीटी प्रोजेक्ट इतना, बिलो द टेबल प्रेजेंटेशन द, ठीक है, ठीक है। और अब एक चीज और, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि यू वांट टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑन दिस टॉपिक, तो यू कैन क्रिएट ए प्रेजेंटेशन इजीली, क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, किस पे, you can create generate the presentations here also। देखिए, स्लाइड 2 इंट्रोडक्शन ऑफ द, स्लाइड 2 कैंसर एंड ग्लोबल इंपॉर्टेंस इम्यूनिटी, here you can create a presentation here also, you can explain each and everything, if you want to, if you want to know that cancer and global challenges, explain, तो आपको क्या होगा, ये पूरा एक्सप्लेन कर देगा कि क्या एग्जैक्टली क्या है। इफ यू वांट टू, देख लो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ग्लोबल इकोनॉमिक बर्डन्स, डाइवर्स कैंसर, रिस्क फैक्टर, प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन। बट आपको जो ये डाटा जनरेट हो रहा है ना, लेकिन इस डाटे पर आपको आंख बंद करके मतलब विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, सेंटेंस मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस डाटा को आपको रेगुलरली आपको चेक करना पड़ेगा, और इसमें ह्यूमन टचिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैट जीपीटी। बहुत सारी चीज है जो अभी जो इसके बारे में मैंने पढ़ा दी, तो ये कंप्लीट पैकेज है फॉर द एआई टूल्स फॉर द इन द क्लासरूम, है ना। अनदर वन इज, हम लास्ट में बस थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा, बस ये लास्ट वन इज, ठीक है, लास्ट लास्ट वन इज टॉम एआई। बस टॉम एआई के बारे में थोड़ा सा बहुत बहुत शॉर्टली बहुत ब्रीफली बताऊंगा, टाइम इज एक्चुअली बहुत टाइम। देखिए, ये टॉम एआई है एक्चुअली, ये एक्चुअली जो टॉम एआई है ना, बेसिकली ये क्या है, प्रेजेंटेशन क्रिएशन है एआई टूल्स की मदद से। आप जो भी टॉपिक चाहे, जैसा भी चाहे, यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन ईयर, साइन ईयर, ठीक है ना, साइन विद गूगल, ये फ्री है, यू कैन यू कैन आपको जरा वो थोड़ा, यू कैन यूज दिस। आपको जो भी लिखना है, जैसा भी लिखना है, चूज योर, किसका लाना है, आप कौन है, एजुकेटर है, ठीक है ना, क्रिएट योर प्रोफाइल यार, नाम क्रिएट योर वर्क बैलेंस, जो भी आप डाल सकते हैं, कंटिन्यू वर्क प्लेस, ठीक है, कंटिन्यू वर्क प्लेस। ठीक है, अब ये देना है आपका क्या, तो हमें क्या करना है अभी फिलहाल, प्रो वाला नहीं, हमें तो अभी बेसिक प्लान चाहिए जिसमें 500 क्रेडिट फ्रीज होते हैं। यू कैन क्लिक हियर। देखिए, इस तरह से आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, प्रेजेंटेशन के थ्रू
टीचर्स प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करके अपने स्टूडेंट्स को मोर एंड मोर इफेक्टिवली पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे क्रिएट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारे स्लाइड दिए, यू कैन यूज द दिस स्लाइड ऑल्सो, बट हम लोग एक नया स्लाइड जनरेट करेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया न्यू स्लाइड। ठीक है, न्यू स्लाइड क्रिएट किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया, अनटाइटल और ब्लैक आ गया। तो हमें यहाँ पर है ना बहुत सारे ऑप्शंस आए हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ पर कॉन्टेक्ट टॉम सपोर्ट गेटिंग प्रॉम्प्ट राइटिंग टिप्स। ठीक है ना, ये सारी चीज एक्सपोर्ट ये है ना, ट्यूटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट प्रेजेंटेशंस। तो हम क्या करिए, क्रिएट प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, क्रिएट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कहेगा कि काइंडली राइट व्हाट इज द प्रेजेंटेशन अबाउट। फॉर एग्जांपल हमने कैंसर एज ए ग्लोबल चैलेंज हमने, ठीक है, या फिर हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक कौन सा था, फॉर एग्जांपल रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ कैंसर रिसर्च। ठीक है ना, रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ कैंसर रिसर्च, वी कैन गो हियर एंड इंटर हियर। तो देखिए हमने एक टॉपिक जा रहा है ना, इन्होंने बहुत सारे टॉपिक जो मतलब एक पूरा स्लाइड का ना एक खाका तैयार कर, ब्रेकिंग द कोड एडवांसेस इन कैंसर रिसर्च। तो उन्होंने टाइटल भी चेंज कर दिया है, अरे इंट्रोडक्शन है करंट स्टेट ऑफ द कैंसर रिसर्च, इम्यूनोथेरेपी, प्रिसिशन मेडिसिन गॉन, ये ठीक है ना। तो ये सारे उन्होंने हमारे क्या है, एक एक हमारे प्रेजेंटेशंस का क्या बना दिया, एक हमारे प्रेजेंटेशंस का पूरा इंडेक्स बना दिया। ठीक है, कंटिन्यू है। देखिए फर्स्ट स्लाइड इज, सेकंड स्लाइड इंट्रोडक्शन करंट स्टेट, सेकंड स्लाइड इज हियर। ठीक है, ब्रीथिंग कोड ऑफ द एडवांस। अब ये क्या करता है, ये टॉम आपको ये देता है, इसके साथ साथ ना आपको ना क्या कर देता है, आपको पिक्चर भी जनरेट कर देता है रिलेटेड टू द योर कंटेंट। ठीक है ना, तो ये क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से इसको, ठीक है, ये तो कितनी स्लाइड्स क्रिएट हो गई। ठीक है, नंबर वन, नंबर टू, introduction cancer, the word alone can be evoked here the sadness and certainly it is disease that the effect million। ठीक है, introductions पूरा हो गया। Current state of cancer research in recent years, there has been significant progress in the cancer research with the new treatments and therapies emerging and others hope for the patients। One area of the focus has been the immunotherapy, which is the harnesses and power of the immune system for the fight cancer cell। This approach, ठीक है, तो ये पूरा देखिए उससे इम्यूनो थेरेपी से रिलेटेड एक पिक्चर्स क्रिएट करके दे दिया। ठीक है ना, इम्यूथेरेपी क्या है उसके बारे में बता दिया ना। इम्यूथेरेपी इज द टाइप ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट दैट द हार्नेस ऑफ द पावर ऑफ द इम्यून सिस्टम टू फाइट कैंसर से, अनलाइक द ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट। ये पूरा देखिए वो उससे रिलेटेड आपको एक पिक्चर्स भी क्रिएट करके दे दी। ठीक है ना, प्रिसिशन मेडिसिन ये वो दे दिया सारी चीज। तो जेन एडिटिंग ये क्या है, जेन इसके बारे में भी बता दिया आपको। ठीक है, और कंक्लूजन बता दें कि इन कंक्लूजन द रिसेंट एडवांसमेंट इन कैंसर इज रिसर्च हैविंग बीन द नथिंग शॉर्ट ऑफ द रिमार्केबल फ्रॉम द इम्यूनोथेरेपी टू द प्रिसिशन ऑफ द मेडिसिन एंड जेन एडिटिंग। तो वो पूरा आपका कंक्लूजन क्रिएट कर दिया है। तो ये क्रिकेट क्या कर दिया, ये 1 2 3 4 5 यानी उन्होंने 6 8 स्लाइड्स को क्रिएट कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से क्रिएट कर स्लाइड्स को यहाँ पर ना अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है, बहुत ज्यादा, ये आपके लिए बहुत वैसा फीचर्स है उसके बारे में फिर। ठीक है ना, यहाँ पर जाके फॉर एग्जाम्पल आप है ना टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियोस या फिर टेबल जनरेट का फिग्मा है, वेब लिंक है। ठीक है ना, ट्विटर का, फार्मर का, जो भी आप चाहें यहाँ पर अपना लिंक यहाँ पर, ठीक है ना, क्रिएट दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई वेबसाइट का नाम देना है तो ये क्लिक किया और यहाँ पर आप वेबसाइट अपनी का, फॉर एग्जांपल भारत डिजिटल एकेडमी।
आपने क्या किया, भारत डिजिटल एकेडमी का क्या है, वेबसाइट को आपने देख लिया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अपना अपना मतलब जो भी है ठीक है ना, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ से लिंक पेस्ट किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपका, ये क्या हो गया, ये आपका, तो ये पूरा आप अपना कर सकते हैं, पूरा इसमें यहाँ पर आप वेबसाइट का पूरा यू कैन यूज योर वेबसाइट ऑल्सो ना, कुछ भी है। तो आई थिंक everyone learn about the AI tools for effective teaching in classroom, and this is my contact details, and thank you very much for your presence। आज का क्लास मतलब आज का जो सेशन था बहुत ज़्यादा टाइम का हो गया, तो if you have any questions you can ask me, if you have any questions you can ask me। I have sent you, Good yes, evening, sir. Can you hear me, sir? yes, please kindly open your camera. Whenever ask the questions, kindly open your camera. I can see you. Nice sessions. I can see you. Yes, open your camera. Yes, sir. Sir, good evening, sir. I'm from Mizoram University Department of Social Work. Yes, yes. For the last 5 days, I was attending on and off. I was little having other, so I was not lately attended, but it was so useful to learn how to use the teaching effectively. Though teaching is a continuous process. At the same time, sir, may I have all the recording, because recording taking place? Can you give me the slides and other recorded lecture, because I missed out? No, I see afterwards. It will be more Yes, useful. That is the reason. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I'll provide you the all recording in YouTube, na. Okay, I loaded in YouTube. Whenever I inform you, na, on WhatsApp group, actually you can see, na. There is Okay, no sir. problem. I will end. And any And question? Yes. furthermore, it was well organized. At the same time, all the resource persons were very experiential sharing. At the same time, they all experts in their own areas. I should appreciate in that way, sir. Thank you so much for Actually, sir, I am also from the sociology background. I am also okay, from the okay. sociology background, na? Okay, Very sir. nice. Okay. Thank you so much, sir. Nice to talk to you. Yes, sir. Thank you very much. Thank you very much. Welcome, As welcome, sir. anyone, yes, anyone can ask the questions which is available. जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, जो आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग सेशन। और मैंने आपको एक आई हैव सेंटेड यू द फीडबैक फॉर्म, तो काइंडली fill the feedback form and review link also I pasted here, ठीक है। ओके, सभी तिवारी, आप लोगों को जो भी समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती क्या है, जब प्रैक्टिकल वर्क होता है ना लोगों के पास, दे हैवंट द सिस्टम, तो प्रैक्टिकल के लिए ना आप प्रैक्टिकल कीजिए, तो यू क्रिएट योर लॉगिन इन ऑल वेबसाइट्स। I recommend you the two AI tools for the supportive, है ना। One is Chat GPT, the second in Educare 8, Educate 8। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल और बहुत परफेक्ट टूल्स हैं आपके लिए। अगर आप यूजी या पीजी या पीएचडी लेवल पर अगर आप पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर है, तो यू कैन यूज द चैट जीपीटी, एजुएट, है ना। यू कैन यूज द अनदर वन एआई टूल्स आल्सो। टूल्स तो बहुत सारे हैं, इतने टूल्स है ना, यू कांट काउंट इट। लेकिन हम तो सिर्फ कुछ ही टाइम में कुछ टूल्स को ही आपको समझा सकते हैं, कुछ टूल्स को ही पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग सबसे ज्यादा थैंक्स रफी साहब, थैंक यू सर, थैंक यू नासिर भाई, थैंक यू बहुत वेरी मच।
और हम आप लोगों को मतलब सिर्फ कुछ टूल्स के बारे में ही पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आपके दिमाग में, आपके माइंड में यू हैव अ आइडिया अबाउट द एआई टूल्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दे कांट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज द एआई टूल्स। इससे पहले वो लोग नहीं जानते कि एआई टूल्स एक्चुअली होते क्या है, और एआई टूल से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, एआई टूल के क्या हमारे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या इश्यूज आते हैं। तो जब कोई वर्कशॉप होता है, कोई ट्रेनिंग होती है, तो उसके जरिए यू कैन नो अबाउट मोर थिंग अबाउट द रिलेटेड टॉपिक्स, है ना। तो बहुत सारे लोगों ने जाना होगा इसके बारे में। तो आई विल सेंड यू certificate on your registered email by tomorrow or after tomorrow. There is no problem, and kindly fill the feedback form. Actually, that is the mandatory for the every participants. On basis of the feedback, I will generate generate a certificate. और जितने भी लोग हैं, those want to say something regarding this workshop, जैसे कि देवादिनंद ने जो एक्सप्लेन किया है ना, तो आप लोग कह सकते हैं। और आप लोग प्लीज एक बार अपना कैमरा जरा ऑन कर लीजिए। एक्चुअली आई वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर द टुडे इज द लास्ट डे ना, तो काइंडली ओपन योर कैमरा। Yes, kindly open your camera. I request that, or you can discuss about anything. कर सकते हैं। Kindly open your camera. Yes, kindly open your camera. Yes, yes, Anupama madam. Yes, yes, yes. Ramsi, yes, ma'am. Jay Manna, ma'am. Please open your camera. Please open your camera. Pooja, ma'am. Nasir, ma'am. Nasir, sir. Pooja, Satyana. Yes, ma'am. Please. Pooja, ma'am. Please open your camera. Srinivasan, sir. Yes, sir. Prasanna Kumar, please open your camera. Firoz Alam, sir. Dr. Firoz Alam, sir. Please go. Sadia Naeem, Ikra Salim, Arun Sari. Please open your camera. Please open your camera. Please open your camera. Yes, please open your camera. Yes. Saparna. Okay, thank you very much for coming this session. If you want to discuss anything, and if you want to say something about regarding this workshop, you can express your views here. Yes, ma'am. Want to say something about this workshop? Actually, your feedback regarding this workshop, you can say. Yes, you can speak. Yeah, you are all are the teachers here. Why are you hesitant? You can speak. Yeah, no, you can speak. Yeah. I think anyone is not interested. Okay. Thank you. Anupama KP, ma'am. Want to say something? Good evening, sir. Good So evening, the 5-day sessions was really effective in terms of as teachers, what do we have to keep in mind to make our sessions more informative and interactive to the students, and especially today's session as to use of the AI tools and technology, how we can use it in a better way. So overall, it was really good, sir. Looking forward to more sessions. Thank you, Thank ma'am. Thank you very much. Reshma, Sridharan, and Ramsi, Suparna, Pooja, ma'am, Nasir sir. Nasir sir, welcome, sir. बहुत अच्छा प्रोग्राम, Yes, sir. very good, very nice. Thank you, ma'am. Thank you. Very nice presentation and very informative. बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोग्राम अच्छे लेक्चर्स थे. Thank you, sir. Thank you for looking forward. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूंगा इंशाल्लाह. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. And anyone? Otherwise, we will end it. Okay.
Firoz sir, want to say something? Firoz sir is here. Firoz sir, are you here? Firoz sir, are you here? Want to say something? No, I think. Anyone else? Pooja ma'am, want to say something? Pooja ma'am, want to say something? Ramsi ma'am, Gemma, Sandhya Rani, Good evening, sir. Gemma. Yeah, ma'am. Open your camera, ma'am. Gemanna ma'am. Ma'am, actually, please introduce yourself. Actually, you are from. Sir, myself, Dr. Jayamma, sir. I'm working as assistant professor in the Department of Food Safety and Quality Assurance, College of Food Science and Technology, Acharya Enjiranga Agriculture University, sir. I'm from AP, sir, Andhra Pradesh. Oh, good, ma'am. Good, ma'am. Ma'am, want to say something regarding this workshop? Actually, this training program is. Sir, 5 really, days. it's very helpful, sir, for me. Almost I attended all the lectures. Today only I missed something, sir. But yesterday and day before yesterday I attended. Really, these all sessions are very good, excellent, sir. Thank you, sir. Okay, ma'am. If you have any, facing any problem regarding any topic, है ना? Not, sir, not like that, sir. But you said actually 5 o'clock, na, sir. Except this day, yesterday and day before, yes, I used to attend exactly 5 o'clock, but it used to start 5:20, 5:30. That is Actually, the one ma'am, problem, sir. Otherwise, Actually, ma'am, there is our one workshop is also scheduled, है ना? So there was at 4 PM ना, तो Okay. इसलिए 2 दिन के लिए हम लोगों को टाइम थोड़ा चेंज करना पड़ा. Okay, thank you very much, ma'am. no issues, sir. Really, it's very useful training, sir. Thank you, sir. Thank you. Yes, anyone else? Anyone else? मैं ये चाहता हूँ कि I want to कि everyone explain their problems, their views. They can speak, they can communicate. हम लोग आते हैं और आके हम लोग वैसे ही चले जाते हैं. हम लोग we are not interact with each other. तो ऑनलाइन का सिस्टम तो ऐसे ही होता है ना कि हम लोग किसी से इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं. तो थ्रू द दिस मीडियम आई वांट दैट वी आर इंटरेक्टेड कि कभी भी कहीं किसी भी जगह कहीं पर किसी दुनिया के किसी कोने पे अगर हम लोगों का इत्तेफाक से इंटरेक्शंस होता है तो वी कैन आइडेंटिफाई के वो फला मैम हमारे साथ थी और हमारे साथ फला मैम ने एक वर्कशॉप अटेंड की थी. तो हम यही चाहते हैं जी. रेशमा मैम want to say something? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, sir. Ma'am, kindly introduce yourself, ma'am. I'm Reshma Sridharan, working as assistant professor in Chinmaya Institute of Technology. आपका सेशन आज का बहुत ही अच्छा था क्योंकि मैंने ये AI टूल्स चैट जीपीटी थोड़ा बहुत यूज किया है, लेकिन आपने जो दूसरे टूल्स बोले हैं वो सही में अगर हमको कोई एक्टिविटी करवाना हो तो कुछ दिमाग में नहीं चल रहा हो तो अच्छा एक बेस है जिससे हम सही में थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा बना सकते हैं स्टूडेंट्स का. तो बहुत ही अच्छा था. धन्यवाद सर. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. लेकिन मैम आप एक प्रॉमिस कीजिए जितने भी टूल्स आपने आज सीखे हैं उनकी प्रैक्टिस रेगुलर करिए आप. और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके माइंड में ना बहुत सारी चीजें आएंगी और जब आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आएंगे तो यू कैन सर्च in Google and other search engines websites. You can find out the lot of मतलब एक कहते ना एक मार्केट है AI टूल्स का ना. और आप पता ना AI टूल्स सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, कोई भी फील्ड है आपका वो AI टूल्स ने इतना प्रोग्रेस कर रहा है ना, आने वाले वक्त में और ज्यादा टाइम में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा. तो अगर आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे ना तो यू कैन लर्न. अगर आपने प्रैक्टिकल नहीं किया ना तो अभी 2 दिन बाद 4 दिन बाद ना आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमने क्या किया था. तो प्रैक्टिकल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और चैट जीपीटी तो ना फादर ऑफ AI टूल्स है ना. आप चैट जीपीटी को कुछ भी ले लीजिए वहां से,
सारे AI टूल्स एक तरफ और चैट GPT और गूगल वार्ड एक तरफ. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. And anyone? Ramshi ma'am is also here. Pooja ma'am. Oh, Ramshi ma'am चली गई. कोई बात नहीं मैम. नहीं, रमसी मैम तो है. Okay, पूजा मैम. Sabita too. Okay. Thank you very much for coming this training program which is conducted by the Bharat Learning and Bharat Digital Academy in Aligarh. So thank you very much everyone for coming this sessions. See you tomorrow. I will send you the certificate on your register email. है ना? Okay, thank you very much. Thank you very much everyone. Thank you Nasir bhai, Anupama ma'am, Prasanna ma'am, Reshma ma'am, Suparna ma'am, Pooja, ठीक है? Sabita, C Devadharan and Rasmi ma'am. Thank you very much. Bye. See you next time for new topic.